सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की एक सीरीज़ शुरू करी है और इस सीरीज़ में हम मेनली CSIR नेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और हम लोग अपने सिलेबस का एक पार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है पोटेंशियल एनालिसिस। अगर तुम लोगों ने नहीं करा है तो प्लीज़ आप लोग एक बार रिवाइज करके आएँ, प्लेलिस्ट चेक करें और उसमें पोटेंशियल एनालिसिस देख कर आएँ। ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स मैंने उसमें कवर किए हैं। अगर तुम लोग वो चीज़ देख लेते हो तो इट इज़ गारंटी फ्रॉम माई साइड you will get 5 marks in your CSIR net examination. Now next we have to talk about the equation of motion. And in classical mechanics, equation of motion is very important. It is very feelful topic actually, and ultimately we have to land at the equation of motion. So let's discuss something about equation of motion. And so today's our topic of discussion is equation of motion. So equation of motion के बारे में हम लोगों को पता है कि equation of motion क्या होती है। Basically it is from second law of Newton's second law, F is equal to mass into acceleration. But ये स्टेटमेंट हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, तो अभी हम लोग 9th क्लास की तो बात कर नहीं सकते. सो वी हैव टू एक्सटेंड दिस इक्वेशन ऑफ मोशन. टू एक्सटेंड दिस इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू talk some basic definitions. So in basic definitions what we have to do is just simply F is equal to m into acceleration is nothing but it is dv divided by dt. First order differentiation of velocity is called the acceleration, and then we have to write it something like that, so that d by dt of what is v? V is actually it is x dot na? Because x dot is equal to dx divided by dt, and dx by dt is nothing but it is the velocity. So we can write velocity as x dot. So that's why मैंने velocity को replace कर दिया किसके साथ? x dot के साथ. And once again अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? F is equal to m into d square x divided by dt square. Just second order differentiation of x is called velocity. So that's why we rewrite this as. So वैसे भी हमको पता है कि एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? Just a second order differentiation of displacement. So this is all about the equation of motion. Next what we can say, m into d square x divided by dt square is equal to f. So this is the equation of motion. So in classical mechanics we have to ultimately land at here. मतलब हम लोगों को कुछ भी करके इस इक्वेशन के ऊपर आना है, क्योंकि ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड वी ऑल नो, वी आर इनफ एजुकेटेड कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं. बट मेरा क्वेश्चन क्या है कि इज़ वी इनफ स्मार्ट कि हम हर एक तरीके की सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? So and the answer of this question is no, because we are normal human beings, and for calculation purpose we have to move forward for computer purposes. So हम लोग second order differentials को computer engineering में solve करते हैं by some codings. So coding की help से हम second order differential को solve करते हैं. This is that level difficult to deal with second order differential equation. So there are some systems, some simplest systems in which we can solve this second order differential equation. So this is the limitation of classical mechanics कि यहाँ पे हम लोगों को second order differential equation को solve करना पड़ता है, और calculations हमारी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम उसको solve ही नहीं कर पाते. So but still there are some problems, there are some still basic questions which we can solve with the help of second order differential equation. Let's see. So my question is to all of the students that what is the simplest system you have ever studied? Think about it. So सोचो कि हाँ, सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम हम लोगों ने कौन सा स्टडी करा है. तो आई थिंक अब तक आ गया होगा आंसर. अगर नहीं है तो फिर सिंपलेस्ट सिस्टम क्या था? वो था, बोलो शाबाश, इट इज़ फ्री पार्टिकल. सो सिंपलेस्ट सिस्टम हमारे पास क्या है? सो पहला हमारा केस क्या है? फ्री पार्टिकल. फ्री पार्टिकल मतलब क्या है कि हम फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे. तो फ्री पार्टिकल क्या होता है? फ्री पार्टिकल मतलब कि
अगर मैं फ्री पार्टिकल अपने आप को कंसीडर कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरे को फ्रीडम है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। दैट मीन्स मेरे ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। फ्री पार्टिकल का मतलब फोर्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री पार्टिकल। सो अगर फोर्स हमारी जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, m इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सिंपली। सो फॉर सिंप्लिसिटी और फॉर कैलकुलेशन पर्पस पुट m इज इक्वल टू 1। मैं m को 1 पुट कर देता हूं ताकि कैलकुलेशंस में हम लोग ना फंसें। जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए हम m को 1 पुट कर देते हैं, फिर देखो क्या होता है। सो डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री पार्टिकल। सो ये हमको चाहिए था। अब जब ये आ जाएगा तो हमको बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो, सो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पहले लेक्चर में देखा था कि हमारी स्टेट क्या होती है। स्टेट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज नथिंग बट इट इज दी पोजीशन एंड वेलोसिटी। दिस इज द स्टेट ऑफ क्लासिकल स्टेट, क्लासिकल सिस्टम। सो मतलब अगर मेरे को क्लासिकल मैकेनिक्स में डील करना है तो मेरे को पोजीशन एंड वेलोसिटी इन दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पोजीशन, एंड फिर क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी। सॉरी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, देन क्या निकलेगा, पोजीशन। देखो कैसे, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की। अभी अगर मैंने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यस वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। तो अगर मैं दोनों साइड्स इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉन्स्टेंट, लेट्स से इट विल बी c1। तो ये हमें क्या मिल गया, तो डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिख देते हैं, एक्स डॉट, इट विल बी इक्वल टू c1। ओके, तो मतलब हमारा वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस हमारी टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रही है, कॉन्स्टेंटली। मतलब इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं एक्स डॉट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स एक्स डॉट का किसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, देन वी हैव अ कांस्टेंट स्लोप। सो दिस इज कांस्टेंट, दैट मींस टाइम चेंज हो रहा है बट टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट। कि हमारी 1 सेकंड के ऊपर भी वेलोसिटी की वैल्यू c1 थी, 2 सेकंड के ऊपर भी c1, 3 सेकंड के ऊपर भी c1, 4 सेकंड के ऊपर भी c1। सो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट द पाथ। सो ये पहली चीज हमें नॉलेज होगी। दैट मींस एक्स डॉट स्टेट का पता चल गया हम लोगों को। अब हम किस स्टेट का पता करेंगे, एक्स का। तो एक्स का पता करने के लिए हमें इसको अगेन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, ताकि dx बाई dt से हमें क्या मिल सके, x मिल सके। सो इंटीग्रेटिंग अब इक्वेशन बन सके, इंटीग्रेटिंग above equation comma we get. So what we are getting, integration of dx divided by dt it will be equal to c1. So integrate करेंगे again. So कैसे करेंगे, integration of dx is equal to integration of c1 into, इधर भी आएगा c1 into dt, dt इधर शिफ्ट कर दिया। तो फिर देखो आगे, integration of dx कितना आ जाएगा, x, it will be equal to c1 is the constant, so c1 will remains as it is, into dt की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, t प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो अगर ये हमारी x की वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग अब किसका किसका ग्राफ कर रहे हैं, x और t का। सो एट दिस पॉइंट इज जीरो। सो जब टाइम जीरो होगा, एट t इज इक्वल टू जीरो, x विल बी इक्वल टू c1 इंटू जीरो प्लस c2, जहाँ पे पुट कर देंगे जीरो। सो x विल बी इक्वल टू c2। मतलब जब हमारा टाइम जीरो है उस वक्त भी x की कोई ना कोई वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है, c2। कितनी वैल्यू है, c2, इट विल बी c2। ये पहली बात हुई। दूसरी बात कि अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो पुट करें, इक्वेट करें तो क्या आएगा, x की जगह पे हमारे पास क्या है, y, एंड c1 की जगह पे क्या है, स्लोप, दैट इज m इज नथिंग बट इट इज दी स्लोप। और स्लोप की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कितनी निकल के आ रही है, c1। दैट मीन्स इस जो हमारा ये वाला ग्राफ होगा इसकी कोई ना कोई स्लोप होगी, और उस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, c1। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता रहूंगा, देखो हमारा अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करूंगा तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मतलब
कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, समझ लो 1 पुट करने के बाद अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास C1 आ रही है, अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास 2C2 आ रही है, 3 पुट कर रहा हूँ तो 3C2, 4 पुट कर रहा हूँ तो 4C2। दैट मीन्स आवर डिस्टेंस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, C1, 2C1, 3C1, 4C1, that means it is linearly increasing with some slope, and that slope is let's say, and ये स्लोप कितनी होगी, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो हम मैथमेटिक्स में स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा, और स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी C1, so C1 is the slope. Okay, so this is the distance versus time graph, this is the velocity versus time graph. So ये हम लोगों को मिल गया आसानी से. Next thing is we have to find the relationship between x dot and x. क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, x dot और x में ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इधर वाली साइड कर लेते हैं x dot और इधर वाली साइड कर लेते हैं x. तो x dot और x का ग्राफ किस तरीके का आएगा, अगेन x dot और x का ग्राफ कैसे आ जाएगा, इट विल बी जस्ट लाइक अ लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि x dot और x ना, तो मतलब अगर मैं डिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ मेरी वेलोसिटी किस तरीके से इंक्रीज कर रही है, लीनियरली. डिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी किस तरीके से चेंज कर रही है, लीनियरली. हाँ, इट विल बी जस्ट लाइक दिस. तो ये हुआ हमारा सारी डिस्कशन किसके ऊपर हुई हमारी डिस्कशन सारी की सारी, सॉरी, x डॉट वर्सेस x ग्राफ ना. x डॉट वर्सेस x ग्राफ में क्या होगा कि देखो हमारी वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर सकती. तो किस तरीके से होगा, जैसे जैसे मेरी डिस्टेंस चेंज होगी, यानी कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट. तो डिस्टेंस चेंज हो रही है, डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, बट हमारी वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट. तो वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट. That's why this was happening. This is the equation of motion for a simple system, very simple system, which is free particle. So this is all about a equation of motion for free particle. So इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें and keep trying. घर पे ट्राई करो इन चीज़ों को खुद लिखने की. So this is all about free particle. Next, तो इसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया. क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर तो बिल्कुल इजीली चल रही है. नेक्स्ट अभी हम थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलेंगे, और अब हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते जाते अभी हम क्या करेंगे, इस फोर्स को वेरिएबल कंसीडर करेंगे. फोर्स को क्या कंसीडर करेंगे, वेरिएबल. दैट मीन्स वेरिएबल इन द सेंस कि सबसे पहले वेरिएबल में सबसे सिंपलिसिटी क्या आ सकती है कि हमारी फोर्स क्या होगी अब, कांस्टेंट. पिछली बार क्या थी, 0. अब हम फोर्स को क्या रखेंगे, कांस्टेंट. लेट्स से k. तो अभी मैं k लेकर चलूंगा, उसके बाद देखते हैं कि सिस्टम हमारा किस तरीके से वेरी करता है. सो इट विल बी सिंपलिसिटी simply just like this. Next, case number 2, take screenshot. Firstly, let's go for the next problem. So the next problem is एक equation of motion की free particle के लिए सबसे पहले अब हमारा क्या है, for constant force. That means let's say the value of force is some constant capital K. Let's say, so हमारी equation of motion क्या है, F is equal to md square x divided by dt square. So m into d square x divided by dt square, it will be equal to force की जगह पे क्या आ जाएगा, let's say constant K. For simplicity let's say हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हमारा m कितना है 1 एंड k कितना है 1. तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं m1 कंसीडर करते हैं, k 1 नहीं करेंगे क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट. सो लेट्स से इट विल बी 1. तो अगर मैं m1 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1 into d square x divided by dt square, it will be equal to k. k 1 नहीं पुट कर सकते है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में करेंगे हम k 1, क्योंकि k कांस्टेंट फोर्स है यहाँ पे कोई भी, सो यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है. d square x divided by dt square, it will be equal to k. तो यहाँ से d square x is equal to k into dt square. सो हमें क्या चाहिए होता है स्टेट के लिए, x और x डॉट. तो यहाँ से अगर मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड. तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, तो क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू k इंटू, सॉरी यहाँ पे वहाँ पे शिफ्ट नहीं करते उधर, इसको इधर ले देते हैं. सो इंटीग्रेट करना दोनों साइड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए तो नीचे टाइम चाहिए. तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के. तो क्या आ जाएगा यहाँ से, dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू k इंटू कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कितनी आएगी विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं तो kt
प्लस लेट्स से कांस्टेंट c1। सो अभी क्या करेंगे, dx डिवाइडेड बाय dt क्या होती है हमारी x डॉट, इट विल बी इक्वल टू kt प्लस c1। तो ये पीछे देखा हमने ऐसी इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से आता है, देखो। सो दिस इज x डॉट एंड दिस इज t। तो हमारा एट t इज इक्वल टू 0, जब t 0 होगा तो x डॉट कितना आ जाएगा, k इंटू 0 प्लस c1। तो x डॉट इज इक्वल टू c1। तो x डॉट कितना आ जाएगा हमारा c1। तो मतलब जब टाइम 0 होगा x डॉट की वैल्यू कुछ ना कुछ होएगी, और वो कितनी होगी c1। एंड उसके बाद अगर मैं 1 पुट करूंगा तो फिर कितना आ जाएगा, 1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा k, 2 पुट करूंगा टाइम तो कितना आ जाएगा 2k, 3 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 3k, 4 पुट करूंगा तो 4k। दैट मींस इट इज लीनियरली इंक्रीजिंग। सो दिस इज द x डॉट वर्सेस t ग्राफ। नेक्स्ट, व्हाट इज आवर नेक्स्ट टारगेट? आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, है ना। नेक्स्ट स्टेट को फाइंड आउट करेंगे x। तो अगर मैं यहाँ से x फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट इज इक्वल टू kt प्लस c1। तो इसका मतलब क्या, x डॉट को क्या लिखते हैं, dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ kt प्लस c1। तो अगर इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, इट विल बी इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c1 इंटू t प्लस c2। व्हाट इज दिस? What is this? This is nothing but this is equation of, किसकी इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसा होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज नथिंग बट इट इज, देखो अगर मैं टाइम t पुट करूं एट t इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू c2। यहाँ पे 0 पुट करूंगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करूंगा 0 तो बचेगा क्या c2। तो x कितना आ जाएगा हमारा c2। मतलब जब टाइम हमारा 0 होगा उस वक्त भी x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वैल्यू कितनी है c2। और हमारा ये ग्राफ इक्वेशन किसकी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दैट मींस इट विल कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग, इट विल कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग। जो पढ़ा है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर पावर फर्स्ट ऑर्डर के इक्वल आ रही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y की जगह यहाँ पे क्या है, टाइम एक्सिस। तो टाइम आ गया यहाँ पे कितना आ गया x। या फिर क्या हो सकता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दोनों चीजें है ना। तो x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x की जगह क्या है t और y की जगह क्या है x। सो दैट इज इट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो कोई बता सकता है ये क्या, कौन सा सिस्टम है? तो f इज इक्वल टू k, ये कौन सा सिस्टम है बताइए, सोचिए इसके बारे में। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे मुंह पर बना देता हूँ। हम लोगों ने प्लॉट किया किसका ग्राफ, x और टाइम का, x और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया। तो हमारे पास क्या आया कि हमारे पास c2 वैल्यू है और इट विल बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट x वर्सेस t ग्राफ। नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x डॉट एंड x। पिछली बार तो सिंपल था कि हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर लिया, सिंपल ग्राफ प्लॉट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग। बट इस बार क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन से हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। सो इसलिए हमें x डॉट और x के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी, उसकी जरूरत पड़ेगी m इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू k, इसकी जरूरत पड़ेगी। सो फ्रॉम ये क्या कर रहे हैं हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन x डॉट एंड x। सो इसके लिए क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे m इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। ऐसा होता है ना, एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू k फॉर m इज इक्वल टू 1, dv डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू k। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, देखो क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। तो अभी हम क्या करेंगे, dv डिवाइडेड बाय dx इधर शिफ्ट कर देंगे और इधर तो एक dx है ये इंटू डी डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू k। तो अभी क्या आएगा नेक्स्ट, अभी क्या आ जाएगा, हाँ तो dx dv डिवाइडेड बाय dx इंटू dx डिवाइडेड बाय dt क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल इंटू k। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, dx इधर शिफ्ट कर देंगे, वेलोसिटी आगे लिख लेते हैं, v इंटू डी वी इज इक्वल टू k इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम लोगों को पता है, प्लस 1 में बढ़ कर आया हम लोगों ने। अभी ये नहीं सिखा सकता मैं यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेबल। ओके, सो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स।
सो वी डी वी की इंटीग्रेशन क्या रहेगी, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम कॉन्स्टेंट C1। तो अभी क्या आ गया हमारे पास, ये हमारा आ गया रिलेशनशिप बिटवीन V एंड X। ओके, आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज द रिलेशन रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट अभी हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई टू प्लस लेट्स से माइनस, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस इज इक्वल टू C1। ठीक है, तो अभी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, के इंटू C1। सो व्हाट वी आर गेटिंग, अभी टू का एलसीएम लेकर तो शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स C1। सो दैट सिंपली मीन्स वी स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू C1 को हम नया नाम देते हैं कॉन्स्टेंट विच इज लेट्स से C। सो व्हाट इज दिस, दिस इज दी नथिंग बट दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अभी इसका प्लॉट करेंगे हम लोग कैसे, पहला केस ले लेते हैं, लेट v इज इक्वल टू जीरो। जब v जीरो होगा इसका मतलब क्या है, हमारा x डॉट कितना होगा, जीरो माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सी डिवाइडेड बाई के। तो x इज इक्वल टू देयर इज अ प्रॉब्लम, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम लिटिल बिट, let me check first। हाँ, there is dx की यहाँ से पता चल रहा है ना कि इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट नहीं आना चाहिए, so there is a problem ना। so k into dx ना, तो dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x ना कि x स्क्वायर बाई टू, k into x। so there is a problem, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ से पावर 2 चली जाएगी, यहाँ पे C1 आ जाएगा सिंपल। so यहाँ पे इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ के एक्स आ जाएगा। सो डोंट वरी, नथिंग टू वरी। ओके, सो वी आर गेटिंग द इक्वेशन एज, सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग द इक्वेशन एज वी स्क्वायर बाई टू, कुछ नहीं है बस मैथमेटिकल रहना है, फिजिक्स तो हम लोगों ने सीखी ली। तो वी स्क्वायर बाई टू माइनस के एक्स इज इक्वल टू C1। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ पर क्या कैसे आ जाएगा, फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी को x डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वेलोसिटी को x डॉट लिख सकते हैं। सो x डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज माइनस के एक्स इज इक्वल टू C1। सो पहला केस क्या आ जाएगा, इफ x डॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस के एक्स इज इक्वल टू C1। सो x इज इक्वल टू C1 ना, हाँ C1 डिवाइडेड बाई k। तो x कितना आ जाएगा हमारा, माइनस C1 बाई k। पिछली बार इमेजिनरी बन रहा था, तो पता है हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी होगी। सो ये पहली चीज़ आ गई कि हमारी एक्स की, जब हमारी वेलोसिटी 0 होगी, लेट्स से हम साथ साथ में प्लॉट भी बना लेते हैं, एक्स डॉट वर्सेज एक्स ग्राफ, एक्स डॉट वर्सेज एक्स ग्राफ। तो ये एक्स डॉट थोड़ा दूर करके था, इसका था, इस ग्राफ का था। तो जब हमारी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी कितनी है, 0, वेलोसिटी 0 है, उस वक्त एक्स कितना है, वेलोसिटी 0, एक्स कितना है, लेट्स से माइनस में आ रहा है ना x, तो इसकी माइनस एक्स जहाँ होगी, तो ये लेट्स से कितना है, माइनस C1 डिवाइडेड बाई k। पहले ये चीज़ हुई। दूसरा पहले वेलोसिटी 0 करके अब हम क्या करेंगे, x 0 करेंगे। इफ x इज इक्वल टू 0 देन अगर x 0 हो जाएगा हमारे, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, x डॉट बाई 2 माइनस k इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू C1। दैट मीन्स C1 इज इक्वल टू x डॉट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x डॉट कितना आ जाएगा, x dot is equal to 2 times C1. That means when x is equal to 0, x dot will be equal to, let's say it will be 2 times C1. It will be 2 times C1. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पे? हाँ देख लो, एट वी इट विल बी x डॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, x डॉट स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x डॉट कितना आ जाएगा, it will be plus minus square root of 2C1, तो it will be plus minus 2 into C1। तो x डॉट कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 into C1, तो पहला रूट के अंदर होगी, तो प्लस का ऊपर आ गया रूट 2C1, माइनस का कितना आ जाएगा नीचे, माइनस टू C1 रूट के अंदर। ठीक, तो अभी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इन सब पॉइंट्स को मिला देंगे, तो इन सब पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये हमारा क्या आ गया, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। So this is it.
सो ये थी हमारी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। सो ये देखो कि हमें कितनी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये इजी नहीं है एक्चुअली, देखने में इजी लगता है बट कैलकुलेशन एरर हो जाता है। सो देख लो ह्यूमन माइंड है तो कैलकुलेशन एरर तो होगा, दैट्स वाई क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशंस हैं। सो अभी यहाँ पे करते करते भी देख लो मिस्टेक्स हो गई, तो ये देखने में इजी लगता है बट जब हम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। दिस इज द लिमिटेशन हियर। सो इस लिमिटेशन को कैसे दूर करते हैं हम ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम 2 और प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करेंगे कि उनका ग्राफ किस तरीके से बनता है। सो मेक श्योर एक बार देख के क्लास, फिर एक बार देखें, 2 बार देखें क्लास, तो कि ताकि डाउट ना रहे, और तीसरी बार खुद लिख के देखें, फिर तुम लोगों के मैकेनिक्स के डाउट्स क्लियर होंगे। सो ट्रस्ट मी, हैव पेशेंस, ट्राई टू सी द क्लास, एनालाइज द क्लास, बस एनालाइज करो क्लासेस को फिलहाल के लिए, फिर देखना बाद में कैसे पढ़ने में मजा आएगा। सो अब तुम लोगों ने बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में एंटर किया है। दिस इज प्योर फिजिक्स, एंड फिजिक्स हमने कितनी पढ़ी? सिर्फ इन ग्राफ्स को देखो, कितने अच्छे ग्राफ बने, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से? सिर्फ एक इक्वेशन से, और वो क्या थी? फोर्स की वैल्यू थी हमारे पास, सिर्फ F इज इक्वल टू जस्ट K, सिर्फ इतना पता था हमें फोर्स कांस्टेंट है, उससे हमने पूरा फाइंड आउट कर लिया। देख लो क्लासिकल स्टेट, एक्स का भी पता कर लिया, एक्स नोट का भी पता कर लिया, एक्स नोट वर्सेज एक्स का भी पता कर लिया, यानी कि हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी उन सब का पता चल गया हम लोगों को। लुक एट द फिजिक्स बिहाइंड इट, कितना कुछ हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन से फाइंड आउट करा। सो दिस इज द ब्यूटी। सो थिंक अबाउट इट, सोचें और 2 बार क्लासेस को जरूर देखें मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।